Okay. Hmm. All right, guys. Hello and welcome everyone to this episode of Success Spotlight series. और आज के एपिसोड में हमारे साथ में है नेहा शेख, who is one of our community members and she has done something really commendable जो आप सबके साथ में शेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस एपिसोड में नेहा अपनी जर्नी बताने वाली हैं कि कैसे उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, कितना पैसा उन्होंने अर्न किया, कैसे किया, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, क्या गलतियां करी, ऑल दोस थिंग्स। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस एपिसोड, पूरे एपिसोड को लास्ट तक देखना सो दैट आप उनकी जर्नी से सीख के चीजों को अपने बिजनेस में अप्लाई करके अपने टाइम को बचा सको, एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करके अपने रिजल्ट्स को बढ़ा सको। परफेक्ट। तो फटाफट से इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो नेहा, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस स्पॉटलाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो Thank you, sir. Thank you, नेहा, sir. इस एपिसोड की स्टार्टिंग सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहता हूँ बाकी सब लोगों के लिए जो शायद अभी आपको नहीं जानते। बहुत सारे लोग ऑल दो जानते हैं बट जो लोग नहीं जानते हैं, आप अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए सो दैट दे गेट टू नो अबाउट यू। Okay. So my name is Neha Sheikh and I'm from Goa. And ग्रेट, आप गोवा से हो। yeah, yeah, I know. And yeah, I'm a housewife, mother of three kids. And obviously, Biz Gurukul mein hu. I'm working in Biz Gurukul almost. It's been a year now. And yeah, my reason was to join because I needed the finances. So I thought, actually, in the beginning, I was really scared because I thought mujhse hoga nahi hoga. I wasn't really sure. But then I thought, why not take a chance? Because this was the only option I had, honestly, because doing a job was not possible as a mother of three kids. It's not possible to go out and do a job. So this was an option where I was actually seeing some results. Housewives also making some good income. So I thought maybe I should take the chance because I had the will, I have the determination कि I वो कुछ करना है. I want to be independent and help in the expenses of the financial situations at home. I knew I had the capability somehow. So I thought why not take a chance and start, and that's how I ended up starting in Facebook. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका इंतजार हर कोई कर रहा होता है। सो इन दिस जर्नी ऑफ 1 year, हाउ मच मनी यू हैव मेड फ्रॉम योर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस? Honestly, it's my dashboard is now 4,59,000 rupees. Great, commendable. Yeah. 4,59,000 in a year, that is almost more than the average salary of an engineer in India, जो 4 साल डिग्री लेने के बाद में Mhm. होता है। But you have done a commendable job. And you said you are a housewife, mother of 3 kids, living in Goa, and उस सब के बाद में you have done all of these things. So बहुत सारे normally housewives के केस में ये questions बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, and लोगों को problem आ रही होती है कि they are not able to manage times and manage household चीजें, बच्चों को संभालना, घर के काम करना और सारी चीजें, प्रॉब्लम सारी, बिकॉज बीइंग अ हाउसवाइफ आपके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने उन Exactly. सारी चीजों को हैंडल करते हुए भी ये रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं फ्रॉम योर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। सो हाउ इज दैट एक्चुअली पॉसिबल? और आप इस चीज पे कहना क्या चाहोगे जो हाउसवाइफ्स ये रीजन देते हैं कि यार हम अपने घर के कामों और बच्चों की वजह से भी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन आवर बिजनेस? व्हाट इज योर मैसेज टू देम एंड आप कैसे ये चीज मैनेज कर पाए? Okay, definitely. See, as a person, if you अगर आपके आप में वो will है, if you really want to do something, it is definitely possible. Otherwise, बाकी सब तो excuses होते हैं कि busy होते हैं. I will use the word excuses because जब when you really want something, तो आप ना कैसे भी उसके लिए वक्त निकालते हो. Because I know as a housewife, it is really busy. I have a toddler. She's 2 years old, my youngest one, and honestly, it is not easy. It is not easy. But when you want something, no, you will definitely work out on it. Like schedule manage करना, you learn it. Initially you will feel ठीक है, difficult होता था, but I managed it. वो manage हो गया मेरे से, because you figure out things. Okay, you'll manage your timetable बना लोगे. Okay, इस time पे ना calls करनी है, when the baby is sleeping, that is going to be a productive time. So उस time को effectively कैसे use करना. Okay, whenever the baby is sleeping, that is my productive हम्म। time. So उसका एक मिनट भी मैं literally waste नहीं करती. I know this 1.5 hour is my productive time. So जो भी मेरे प्रोडक्टिव काम होते हैं, इंपॉर्टेंट काम जिससे मुझे रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, दैट प्रोडक्टिव हम्म। टाइम आई विल डू व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग. ओके, फिर कुछ टाइम ऐसा होता है व्हेन आई डोंट हैव टू, ओके, फॉर नेक्स्ट 1.5 hour आई डोंट हैव टू डू एनी हाउस होल्ड वर्क. डिनर के लिए टाइम है, द किड्स आर प्लेइंग, सो अगेन उस टाइम पे कुछ करना. एंड देन द नेक्स्ट प्रोडक्टिव टाइम मेरा होता है व्हेन द किड्स आर स्लीपिंग, सो उसको भी बिना टाइम वेस्ट किए उसको सही तरीके इस्तेमाल करना. So वो हो जाता है. बस आपको वो इनिशिएटिव लेनी चाहिए, वो स्टार्ट करने से डरना नहीं चाहिए. यू शुड जस्ट टेक द इनिशिएटिव, यू विल फिगर आउट थिंग्स इन द. आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए. As a mother, for me, my why is because I'm doing it for my kids, for my family. So the moment your why is clear, it actually helps you to do. और इन बिटवीन अगर आपका मोटिवेशन कम भी हो जाता है ना, आपको खुद को अपना वाई याद दिलाना चाहिए कि वाई एम आई डूइंग दिस. तो जैसे ही आपको खुद को वो अपना वाई याद दिलाते हो ना, हम्म। मोटिवेशन खुद ब खुद, यू गेट दैट मोटिवेशन बैक. और ऑनेस्टली यहाँ पे ना कितने भी सामने वाला कितना भी आपको मोटिवेट करे, सेल्फ मोटिवेशन इज द की.
You have to motivate yourself, reminding yourself कि why you are doing this, because सामने वाला कितना ही आपको motivate करेगा, right? So in हम्म fact, as a housewife, I honestly feel, okay, out of my personal experience, I don't know, मेरे पास जो भी housewives आते हैं, 95% of them will say कि husband support नहीं करते हैं. हम्म Okay, and I would like to share my maybe personal experience. Maybe हम्म housewives will be inspired. When I started, honestly, I knew I will be able to do it, because not because I was hardworking enough. I was a very good, मतलब hard work करना मुझे parents ने मेरे सिखाया था. So I knew I will be able to do it. बस हस्बैंड की तरफ से ना, क्यों करना है, बच्चों को संभालो, फाइनेंशियल हम्म प्रॉब्लम्स हैं, बट आई विल मैनेज, आई हम्म एम द मैन ऑफ द हाउस. तुम छोड़ दो, तुम बच्चों को संभालो. सेकेंडली, हम्म ऑनलाइन है तो पैसे मत डालो. Why are you wasting your money on a course or in something online? You will not be able to make money. Just leave it aside. तुम बच्चों को देखो, मैं कर लूंगा, पता है प्रॉब्लम्स है. So ये सब ना, हम्म ये मेरे साथ भी हुआ था. So when I discussed with him, I did not get the support. I took a time, I thought about it, and then I spoke to my parents about it. हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई इंसान होता है जो आपको समझता है, right? So for me, हम्म those were my parents. So I spoke to them, and they actually helped me start here. उनका मोटिवेशन तो था मुझे. And honestly, after starting also, it's not that I took the finances from my husband. After starting also, जब मैंने ट्रेनिंग सीखना स्टार्ट किया, so he asked me कि क्या है ये. I did not even inform him कि मैं स्टार्ट किया है, honestly. Without informing, मैंने ज्वाइन कर लिया. And obviously, we're living in the same house, so मैं ट्रेनिंग्स देखती थी, तो उन्होंने पूछा क्या है. So I said I have joined this thing. Please don't demo. I need this thing. I need to do this. So तब भी उन्होंने हम्म बोला कि नहीं होगा, तुमने ज्वाइन कर लिया, पैसे डुबा दिए, चलो ठीक है. अब ये ट्रेनिंग, you will not be able, don't continue, don't waste your time. So every time I would watch these trainings, so मुझे वो, that person would show कि you're wasting your time. I could feel, he's making me feel I'm actually wasting my time. But उस negativity को ना avoid करना, it was difficult. It was really difficult. But मैंने किया, because my why was clear. I can't do a job, right? I need the finances. I हम्म know मुझे ये करना है. I have started, मुझे करना है. So उस negativity को मैंने ignore किया. It was not easy. And वो उस negativity को लेके मैं आगे बढ़ी हूँ. फिर जब results आए, obviously सब लोग support करते हैं. Now I have the results. So I don't have that demotivation, and he knows I'm doing it. So अभी वो support है. But वो starting का period ना, मैंने वो सफर पूरा अकेले ही तय किया. Parents थे Your सब. husband is in your support now when you have Now, created the results. yes, yes, yes. Great, great, great. Perfect, वो, perfect, yeah, perfect. so वो सफर मैंने अकेले तय किया है. So to all the housewives, even if your husband, I'm just saying कि वो सफर आपको कभी भी अकेले तय करना पड़ता है until you have the results. फिर वो लोग आपके ही साइड पे आ जाते हैं. So वो आपको करना है स्टार्टिंग में. परफेक्ट. तो आपकी इस पूरी जर्नी से मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और एंड आई एम श्योर जो हाउसवाइफ अभी इस Yeah. एपिसोड को देख रही होंगी उनके तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे. एक एक करके सारी चीजें क्लियर करते हैं. सबसे पहले तो मेजोरिटी हाउसवाइफ्स को ये वाला प्रॉब्लम होता है, दे फील लाइक यार बच्चे हैं तो कैसे टाइम निकलेगा, स्पेशली जिनके टॉडलर्स होते हैं लाइक यू सेड कि आप 2 years old टॉडलर, तो उनके साथ में चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट यू सेड कि आपने टाइम निकाला जब बच्चे सो रहे होते हैं तब आप काम कर रहे Yeah. होते हैं. तो लाइक हाउ वर यू एबल टू मैनेज दीज थिंग्स, बिकॉज नॉर्मली यही चीजें ऐसी आती हैं जो हाउसवाइफ्स को स्टार्ट करने के बाद में भी चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करने देती हैं, चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. तो व्हाट वाज दैट वन थिंग या व्हाट एवर, लाइक आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे आप वो चीजें मैनेज कर पाए, हाउ आर यू एबल टू मैनेज दैट थिंग? अगेन आई विल कम टू द सेम थिंग. जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है, तो यू समहाउ वो मैनेजमेंट हो जाता है. आपको वाई क्लियर करना चाहिए कि क्यों मुझे, व्हाई डू आई नीड टू डू दिस. अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हो या फिर व्हाट इवन फॉर योर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, अगर आपका वाई क्लियर हो गया ना, वो खुद ब खुद मैनेज हो जाता है. सो यू स्टार्ट फिगरिंग इट आउट. स्टार्टिंग में शायद आपको फिगर आउट नहीं होगा, बट वो टाइम टेबल आप बना लेते हो. लाइक आई सेड, प्रोडक्टिव टाइम जब बच्चे सोते हैं वही होता है. सो सो जिस दिन आपको लग रहा है कि ठीक है, आज ना कुकिंग कम है, तो उस दिन पे आप ज्यादा टाइम कर लो. कुछ फेस्टिविटीज है, फॉर एग्जांपल कल आपको पता है कि आपका कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है, कुछ फैमिली फंक्शंस अटेंड करने, तो आज उसकी तैयारी कर लो, आज एक्स्ट्रा वर्क कर लो, ताकि कल हम्म कॉम्पनसेशन. ऐसा तो मैं ऐसे ही करती थी. कल मुझे पता है कि कल मेरा ये टाइम पे ना रील अपलोड करने का टाइम है, और मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं एडवांस में उसको सेव ड्राफ्ट करके कर लेती. सो व्हेन इवन इफ आई एम अराउंड पीपल आल्सो, आई जस्ट ओपन माय अकाउंट एंड उस रील को अपलोड करना, बिकॉज एल्गोरिथम आल्सो मैटर्स. सो ऐसे करके टाइम मैनेजमेंट हो जाता है. बस आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए. दैट्स इट एक्चुअली. ओके. आपकी पूरी स्टोरी में दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई दिखी हैं एंड विच आई फील उनके ऊपर क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. नंबर वन वाज that you have the clarity about your why, which you said कि you want to एग्जैक्टली. do it for your kids,
एंड Yes. दैट वाज योर वाई, इसीलिए आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, आप चीजें कर पाए। दूसरी चीज आपने बोली कि एक्सटर्नल मोटिवेशन अपनी जगह पर ठीक है, बट सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत Self जरूरी है, तभी आप motivation. चीजें कर पाओगे, विच आई Yes. ऑनेस्टली ऑल्सो फील कि बहुत सारे लोगों में लैक करता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन कितना भी आपको मिल जाए, बट सेल्फ मोटिवेशन जब लैक करता है, देन यू Yes. विल ऑलवेज सी चैलेंजेस और आप उनको लेके रुक जाते हो। तो हाउ आर you able to manage this self motivation when your husband was also not in your support in starting? You have got n number of reasons to say कि यार मेरे से ये नहीं हो सकता, एंड प्रैक्टिकली आपके पास में बहुत सारे Yeah. रीजन है ये कहने के लिए कि मेरे से नहीं हो सकता, बट स्टिल इन सारी चीजों से ऊपर उठ के सेल्फ मोटिवेशन के साथ में आपने ये रिजल्ट्स क्रिएट किया। सो Yes. व्हाट लाइक वो सेल्फ मोटिवेशन आपके पास में कैसे आया और कैसे आप उसको मेंटेन कर पाए इतने लंबे समय के लिए? ऑनेस्टली डिमोटिवेशन बहुत आती थी बीच में, राइट? सो उस टाइम पे व्हाट आई यूज टू डू इज अगेन, लाइक ऐसे मेरे भाई को मैं याद करती एंड आई यूज टू मैनिफेस्ट, मैं इमेजिन करती थी कि अब मुझे डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, ये मेरा टेस्टिंग पीरियड है। सो मैं हम्म। इमेजिन करती थी, अपने आप को बताती, यू नो, आई यूज टू मेक माई सेल्फ इमेजिन कि इस दौर को अगर मैंने गिव अप कर दिया तो आगे क्या होगा, और इसी दौर को मैंने ना कंटिन्यू रखा, इस स्ट्रगल, जो स्ट्रगल पीरियड है इसको मैंने पार कर लिया, जो आगे की जिंदगी मेरे क्या आने वाली है उसको मैं इमेजिन करती थी, like you know. So that is, I should actually picturize myself, you know, okay, I'm struggling to make money now. So अगर मैंने इसको पार कर लिया, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, इस स्ट्रगलिंग खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ी, so I should imagine a life where, you know, I'm making money, say 2 lakh per month. Okay, I'm मेरे बच्चों की हर एक ख्वाहिश, फीस टाइम टू टाइम जा रही है, I'm living in a nuclear family, like मेरे केस में था कि I used to live in a joint family. So you know, I used to imagine कि, you know, okay, now I'm financially independent, so I can actually maybe take the courage in the sense कि, you know, move out. That was my wish. So हर एक चीज जो मैं मुझे चाहिए थी, so मैं उसको ना एक हम्म। पिक्चर में लाती, माइंड में लाती, वो मैनिफेस्ट करती, इमेजिन करती। सो वो हैप्पीनेस जो मुझे आती ना उस वक्त, जो वो आगे की फ्यूचर लाइफ को मैं इमेजिन करती, वो हैप्पीनेस ना फिर मुझे मोटिवेट करती कि ठीक है, मैं उसको पाने वाली हूँ, अगर मैं आज ये मेहनत करती हूँ, अगर आज मैं इस दौर को क्रॉस करती हूँ। सो दिस ग्रेट, एक्चुअली हेल्प्स, या। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। यू लाइक हैव अ रियली अमेजिंग माइंडसेट, एंड आई ऑनेस्टली फील इस या। पूरी जर्नी में आपके माइंडसेट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एंड दैट वाज द रीजन कि आप वहां से यहाँ तक आ पाए। दैट रियली मींस अ लॉट। बहुत बहुत अच्छी बात है। आई एम गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। सो कमिंग कमिंग So टू द I'm नेक्स्ट क्वेश्चन। really sorry to interrupt. इसमें ना डीबीटी का भी बहुत हाथ है, बिकॉज मेरी ग्रोथ एक्चुअली डीबीटी के आने के बाद बहुत बड़ी है, और इस मैनिफेस्टेशन को, टाइम मैनेजमेंट को लेके डीबीटी ने बहुत एक्चुअली मेरी हेल्प की है, यू नो। सो डीबीटी इज ऑल्सो रियली प्लेज अ रोल इन दिस, एक्चुअली मेरी ग्रोथ में जो भी मैंने दैट्स देखा ग्रेट, है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो नेहा, आपने जैसे बताया आपके पास आपके माइंड में हमेशा वो चीजें मैनिफेस्ट होती रहती थी, आउटकम्स मैनिफेस्ट होते रहते थे कि मैं ये कर यस। लूंगी तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा, ये सारी चीजें होंगी। सो इस पूरे एक साल में यू हैव मेड 4-5 लाख रुपीज, वट एवर अमाउंट यू हैव मेड, आपने उसमें से कुछ चीजों में इन्वेस्ट किया होगा, कुछ पैसा अपने पास में रखा होगा। व्हाट इज दैट वन मोस्ट स्पेशल थिंग जो आपने खुद अपने पैसे से अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करी, जो शायद अगर आप ये ना कर रहे होते तो नहीं कर पाते, बट बिकॉज यू हैव मेड योर ओन मनी तो आपने कर ली? व्हाट इज दैट वन मोस्ट स्पेशल थिंग? ओके, सो यहाँ पे थोड़ा पर्सनल होके आई विल से, बिकॉज आई एम श्योर दैट मेनी पीपल विल वॉच दिस, सो जस्ट फॉर देयर इंस्पिरेशन। एक टाइम था, वी वर गोइंग टू फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड यू नो, सो फॉर बच्चों की फीस के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी, एंड आई हैड टू लिटरली, लाइक, यू नो, मे बी आस्क समटाइम्स बोरो। सो वो चीज अब नहीं हो रही है, आई एम एबल टू पे इट ऑन टाइम। सो दिस वाज एक्चुअली माय मेजर रीजन व्हाई आई स्टार्टेड। सो ये आई ग्रेट, थिंक ये बेस्ट चीज, अगर आपने एक चीज पूछी तो मैं इसी को बेस्ट बोलूंगी, वरना हुए तो बहुत चीजें हैं इसके अलावा। दैट्स ग्रेट, दैट्स या। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत बड़ी बात है, एंड आई होप लाइक दिस वुड बी अ ड्रीम फॉर एनी हाउस वाइफ जो या। कभी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में रहे हैं, कि उन्होंने वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी देखी। दैट दैट रियली मीन्स अ लॉट, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। सो है ना, एक तो ये सारी भी अभी अभी तक हमने जो भी बात करी, दैट इज लाइक फ्रॉम द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड एफिलिएट मार्केटिंग, जब आप स्टार्ट कर चुके थे उसके बाद की जर्नी की बात हुई। इफ आई आस्क अबाउट द बैक एंड ऑफ इट, स्टार्ट करने से पहले, यू सेड योर हस्बैंड वाज नॉट इन योर सपोर्ट, यू एनी हाउ स्टार्टेड इट, आपने उनसे छुप के भी चीजें करी, ट्रेनिंग्स देखी, देन जब आपने रिजल्ट्स क्रिएट कर लिए, देन ही केम इनटू योर सपोर्ट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स, एंड नॉट जस्ट हाउसवाइफ्स बट ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल, जो चीजें स्टार्ट करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, उनके फैमिली, उनके हस्बैंड वाइफ या कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, दे आर ऑल अलोन इन देयर जर्नी। एंड कई सारे लोगों के पास में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स के साथ में ये चीज होती है कि दे डोंट करेक्ट। हैव मनी टू स्टार्ट अप विद द थिंग्स। सो हाउ आर यू एबल टू मैनेज द फंड्स इन योर इनिशियल डेज टू इवन स्टार्ट अप विद दीज थिंग्स?
Like I said, see, as a housewife or even as a student also, if somebody is starting, obviously they are starting because they want to be independent. वो हम्म working professions के केस में अलग होता है. So obviously यहाँ पे arrange करके ही you have to start, because we as housewives or as students who are not making any money yet, so वो arrangement करके ही करना पड़ता है. But it's like you're investing in yourself, in your skills, you're investing in an opportunity that will actually make you independent in the future. तो वो सोच हम्म की बात होती है, बिकॉज पैसे ऐसे नहीं कि आप खर्च कहीं नहीं करते हो, यू विल स्पेंड दैट मनी समवेयर और द अदर. सो इन्वेस्टिंग इन द राइट प्लेस, योर मनी, investing your time and your efforts in the right place is very important. अगर आप वो that thinking is very important. अगर आप वो सोच से यहाँ पे स्टार्ट कर तो definitely you are the one who is going to benefit, right? Ultimately financial independence आपको मिल रही है, right? वो लाइफ जो आप हम्म चाहते हो कि आप किसी से पैसे ना मांगे, खुद के खर्चे खुद उठाएं, ये लाइफ आपको यहाँ पे मिल रही है. सो इसके लिए even if you have to arrange from somewhere in the beginning, it is definitely worth it, because अगर आपको कॉन्फिडेंस खुद में है कि मैं कर लूंगी, I will be able to हम्म earn. सो इस वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिल रहा है वो आप इमेजिन करो, एंड इट्स डेफिनेटली गोना बी वर्थ इट. अरेंजिंग आल्सो समटाइम्स एक्चुअली वर्क्स, बिकॉज मेजर केसेस में यही होता है ग्रेट स्टूडेंट्स के, हाउस वाइफ्स के केसेस में. ग्रेट ग्रेट द मोमेंट व्हेन यू सेट किया वो पैसा कहीं ना कहीं तो वैसे भी लगाने ही वाले थे, तो उसको या सही जगह पर लगाओ. दैट दैट रियली इंस्पायर्ड मी. मतलब बहुत टू द पॉइंट चीज आपने बोली कि यार पैसा तो वैसे भी कहीं ना कहीं खर्च होने ही वाला है, आप लाइफ में या पैसा तो खर्च एग्जैक्टली. करोगे ही करोगे. इफ यू इन्वेस्ट इट एट द राइट प्लेस तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकल सकते हैं और आपकी लाइफ बहुत बेटर बन सकती है. दैट्स रियली ग्रेट. सो नेहा, इन दिस एंटायर जर्नी आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, करी हैं. सो आपके पास में इन सारी चीजों से रिलेटेड पहले से कोई बैकग्राउंड था, या फिर इट वाज लाइक कंप्लीटली आपने स्क्रैच से चीजें सीख के ये पूरा बिल्ड किया, या पहले से आपके पास में कोई बैकग्राउंड था, कोई कॉर्पोरेट बैकग्राउंड या एनीथिंग लाइक दैट? नो नो, आई एम एक्चुअली अ ग्रेजुएट इन माइक्रोबायोलॉजी, बट कभी मैं जॉब नहीं कर पाई बिकॉज वो जॉब प्लेस बहुत दूर था मेरे घर से. आई बीन हाउस वाइफ फॉर 12 years ऑफ माई लाइफ कंप्लीटली. जो सीखा था वो भी मैं भूल गई थी बिकॉज कोई आई वॉज नॉट इन टच विथ इट. But yes, it was completely new. On social media पे आना, honestly, I had not even imagined कि मैंने सोचा भी नहीं था. But again, like I said, my wife was very clear. So zero knowledge, zero experience, everything I have learned. मुझे social media का I try to make see people posting on social media. I actually wonder कि videos बनाते कैसे होंगे. I had a cousin who हम्म used to make these reels, normal video editing वाली, but I used to wonder how does she make it. पर उस टाइम पर मुझे इंटरेस्ट नहीं था सीखने में, बिकॉज आई डिड नॉट नीड दैट. नो, जब जरूरत आई, when I felt the need, everything from the scratch I learned. And honestly, it took me some time. It was frustrating also because हर चीज नहीं है मेरे लिए, चाहे वो एडिटिंग हम्म हो या फिर हर चीज, कम्युनिकेशन विद पीपल, हर चीज नहीं थी मेरे लिए. बट आई नेवर गिव अप, बिकॉज मुझे पता है कि प्रैक्टिस से हो जाएगी हर चीज ना प्रैक्टिस से परफेक्शन हो जाता है. एक टाइम था जब हम्म आई टू वंडर हाउ माई कजन इज मेकिंग दैट रील. फिर एक टाइम आया जब another cousin of mine, she actually called me and said she wants to learn video editing from me. So वहां ग्रेट से लेकर वहां तक का सफर मैंने तय किया है इस 1 year में बिल्कुल को. I mean, this is अमेजिंग my अमेजिंग. affiliate marketing journey of mine. दैट इज रियली इंस्पायरिंग. सारी चीजें स्क्रैच से स्टार्ट करके सीख के बिल्ड करके आपने ये रिजल्ट्स भी क्रिएट किए हैं. दैट इज रियली इंस्पायरिंग. तो इस पूरी जर्नी में नेहा आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारे एफर्ट्स खुद से लगाए. अब व्हाट डू यू से अबाउट कि इस पूरी जर्नी में जो चीजें आप सीख रहे होते हो, व्हाट रोल डज अ मेंटोर प्ले, या एक गाइडेंस या सपोर्ट क्या रोल प्ले करता है, उससे क्या फायदे होते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं, वट एवर इट इज, प्रोज एंड कॉन्स, वट एवर यू फेल्ट लाइक कि आपकी पूरी जर्नी में आपके लिए चीजें आई हैं, कैसे किसी मेंटोर या किसी गाइड के होने से आपकी लाइफ में कुछ बेटर हुआ. व्हाट डू यू से अबाउट दैट इस पूरे एक साल की जर्नी में? Honestly, I feel yes, mentor का actually बहुत बड़ा रोल होता है, if you ask me, because as a beginner ना हम लोग को we don't have the proper direction. आप कितना भी yes trainings आप देखते हो करते हो, but when there's a proper person who has proper knowledge, experience, जिसके बाद बहुत चीजें हैं जिससे आप सीख सकते हो, so वो बहुत हम्म मैटर करता है आपकी जर्नी को ना, वो ग्रोथ दे देता है अच्छी. वरना आप खुद से भी कर लोगे, आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट विदाउट अ मेंटर, आप कर लोगे, बट वो ग्रोथ हम्म जो आपको चाहिए ना, वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरीथिंग. सो दैट एक्चुअली उस चीज के लिए यस, मेंटोर होना ना बहुत अफेक्ट करता है. आई ऑनेस्टली फील इट इज रिक्वायर्ड. वो आपकी ग्रोथ को ना मल्टीप्लाई कर देता है, एंड इट गिव्स यू ऑल द थिंग्स जो आपको शायद टाइम सीखने में टाइम लग जाए, इफ नॉट फॉर अ मेंटोर, राइट? सो इन दैट. That's great. So, नेहा, एक साल पहले यू वर एट जीरो व्हेन यू हैड नेवर मेड एनी मनी इन योर लाइफ. आपने कभी कोई जॉब नहीं किया, खुद से यस. खुद का पैसा शायद इससे पहले कभी नहीं कमाया, एंड नाउ यू आर सिटिंग एट 4-5 लाख रुपीज. यू हैव मेड योर ओन मनी एंड यू आर मेकिंग मनी एवरी सिंगल डे. नाउ यू आर परफेक्ट इन योर बिजनेस, यू आर ग्रोइंग एवरी सिंगल डे.
आज से 1 साल पहले वाली नेहा और आज वाली नेहा में what do you feel are the major personality changes because of whatever results you have created and whatever things you have achieved? What are the major personality changes which you see in yourself as a person? आप कैसे evolve कर रहे हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस आई वुड से एक मेजर चेंज है, बिकॉज अब ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पीछे रह गया था. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस वेयर यस आई आई एम केपेबल ऑफ इट, खुद की रिस्पेक्ट करना कि आई ये मैंने किया है. और बीइंग एबल टू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वेयर आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर इवन स्मॉल स्मॉल पेटी पेटी थिंग्स ऑल्सो. सो ये सब चेंजेस लाते आते लाइफ में, जो बहुत इट्स रियली अमेजिंग एक्चुअली टू हैव दीज थिंग्स. पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइक आई सेड. एंड यू सामने वाले आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट, वो इट हैपेंस, या इट हैपेंस विद टाइम. एंड ऑनेस्टली इट इज रियली Great. ब्यूटीफुल. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आपने इंटरनल चेंजेस के बारे में बताया, एक्सटर्नल भी चीजें चेंज हो रही होती, एक्सटर्नल पीपल फिगर स्टार्ट चेंजेस रिस्पेक्टिंग ऑल्सो, यू एंड थिंग्स लाइक एग्जैक्टली. दैट. ग्रेट ग्रेट. परफेक्ट परफेक्ट. योर जर्नी इज रियली इंस्पायरिंग एंड आई एम प्रीटी मच श्योर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सक्सेस स्पॉटलाइट को देख रहे हैं, दे आर आल्सो गेटिंग अ लॉट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, फ्रॉम योर जर्नी. सो नेहा, specifically talking to a housewife who is watching this video right now, जो अपनी जर्नी में 2 4 6 महीने साल भर लगा चुकी है, रिजल्ट्स नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं, what is your final message to that one person जो अभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड बैठा हुआ है? आई एम प्रीटी मच श्योर वो इस वीडियो को देख रहा है, आपकी जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा, बट व्हाट इज योर फाइनल मैसेज टू दैट पर्सन जो अभी भी डिमोटिवेटेड है, टाइम एफर्ट सब चीजें लगाने के बाद में भी रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? व्हाट इज योर फाइनल मैसेज टू देम? सो आई वुड से कि सी मे बी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आपको रिजल्ट्स कभी भी नहीं आएंगे. एवरीबॉडी जर्नी इज डिफरेंट. कुछ लोगों को रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है. सो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो. अगर आप यहाँ तक आए हो तो डीमोटिवेट होने के लिए नहीं आए हो, बस कुछ और सफर आगे तक आपको तय करना है. एंड यस, कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन कर भी रहे हो तो वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. क्या आपको यू हैव टू एक्चुअली सिट एंड एनालाइज योरसेल्फ कि आई एम वर्किंग, जो भी रिक्वायर्ड है मैं कर रही हूँ काम, बट एम आई डूइंग इट द करेक्ट वे. सेल्फ एनालाइजेशन वो भी इंपॉर्टेंट होता है. सो क्या मैं सही तरीके से कर रही हूँ, क्या मैं ट्रेनिंग्स देख रही हूँ, क्या किस चीजों में मैं लैक कर रही हूँ. बिकॉज रिजल्ट आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, आपको भी आएंगे. बस आप सेल्फ एनालिसिस करो कि क्या मैं रॉन्ग कर रही हूँ, उस चीजों को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो. अगर आपको कंटेंट चाहिए नहीं तो कंटेंट को इम्प्रूव करो. सो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. एज द रिजल्ट आते हैं. See, वो जब आप हार्ड वर्क डालते हो किसी में, तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं आएंगे. बस एक वो डिमोटिवेशन का फेज होता है, बस आपको वो क्रॉस करना है. एंड वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. एंड हार्ड वर्क ऑल्सो. इफ यू आर फीलिंग के सी व्हेन यू मैनिफेस्ट समथिंग, अगर आपको कुछ पाना है ना, यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस. आपको खुद में यकीन होना चाहिए मैं उसको इनफ दे रही हूँ. आई एम गिविंग इट द इनफ हम्म. आवर्स. यस वी आर बिजी, बट अगर आप बैठ के सोचते हो कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सो यू हैव टू थिंक योरसेल्फ, क्या मैं उतने आवर्स दे रही हूँ जो रिक्वायर्ड है मुझे रिजल्ट्स आने के लिए? क्या मैं उतना हार्ड वर्क कर रही हूँ जो रिक्वायर्ड है रिजल्ट्स आने के लिए? सो अगर आप ये हम्म. खुद को पूछते हो ना, so if you feel somewhere no I am not giving enough efforts, then start giving those much efforts. if you are feeling no, शायद मैं कम टाइम दे रही हूँ, एक ही घंटा दे रही हूँ, शायद 2 घंटे दूं, 2.5 घंटे दूं तो मुझे रिजल्ट्स आ जाएंगे. सो इंक्रीज योर टाइम. सो आस्क योरसेल्फ, आर यू गिविंग इनफ एफर्ट्स? सेल्फ एनालिसिस एंड ये सेल्फ मोटिवेशन, आपका वाई क्लियर होना चाहिए. यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स. परफेक्ट परफेक्ट. ग्रेट. रियली इंस्पायरिंग. थैंक यू सो मच नेहा फॉर योर टाइम और ये सारी चीजें, वैल्यूएबल चीजें, अपनी जर्नी इन सारे लोगों के साथ में शेयर करने के लिए. आई एम 100% श्योर बहुत सारे लोगों को बहुत इंस्पायर्ड फील होगा ये सक्सेस स्पॉटलाइट देखने के बाद में, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अमेजिंग रिजल्ट्स लाइक यू. थैंक यू सो मच थैंक यू नेहा सर. फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सक्सेस स्पॉटलाइट सीरीज. एंड एनीवन एंड एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज 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 इंश्योर आप भी नेहा की तरीके चीजों को इंप्लीमेंट करें, सही डायरेक्शन में काम करें, सेल्फ एनालिसिस करें जैसा नेहा ने बताया. And yeah, you and anyone and everyone can achieve results in Yes, their business. definitely. Definitely, That's great. sir. Thank you so much, Neha, for being a part of the Success Thank you, Spotlight sir. Thank series. you for having me. Thank you, sir.